Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nosheen Tariq Siddiqui. This semester, I'm going to take your pharmaceutics, that is physical pharmacy course. The course code is Pharm 315. Last semester, you have done the basic pharmaceutics courses or pharmaceutics topics, which comprised of the history and literature of pharmacy, while you also have done the physicochemical properties, the dispersion, and in dispersion you have done colloids, emulsions, and suspensions, etc. In this semester, you are again going to do the physical parameters or the physical properties or the physical part of the pharmaceutics, in which you will do the rheology, and it will be about the basic phenomena or the basic of rheology. What is rheology? What are the fundamental concepts in rheology? What are the properties that contribute to rheological behavior? And also I'll show you some graphical representations of rheological data. There are other processes as well, which is known as physicochemical processes. These are the physicochemical processes. I think you have done the physicochemical properties, and now you will do the physicochemical processes. Processes may they are actually those processes which you have already, you have idea of these processes, like ये जैसे precipitation है, crystallization है, distillation है. We are going to हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे और इसको दोबारा से समझेंगे in context to pharmacy. ठीक है, इसमें precipitation, crystallization, distillation, मिसलेनियस में आपके पास जो है इफ्लोरेसेंस, डिलिक्विसेंस, लाइफोलाइजेशन, ये सारी चीजें जो कि एक प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, या ये समझ लीजिए कि ये सारे प्रोसेसेस को इनकाउंटर करना पड़ता है हमको व्हाइल वी आर मेकिंग अ ड्रग या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. इसके अलावा हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस भी करेंगे, जिसमें मैसरेशन, पर्कुलेशन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन, उसके पर्पसेस, उसके प्रोसेसेस क्या क्या हैं वो हम सब पढ़ेंगे. रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन से रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, आई थिंक प्रॉब्ली आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी किया हुआ है, इसे भी हम दोबारा करेंगे. काइनेटिक प्रिंसिपल्स एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम बेसिक तरीके से करेंगे. फिर थ्योरेटिकल कंसिडरेशन ऑफ डिग्रेडेशन कैसे होती है, फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ, एसिड बेस कैटलिस्ट, यूवी लाइट वगैरह जो कि असरअंदाज होते हैं डिग्रेडेशन के ऊपर. while there are chemical factors as well, जो कि complex chemical reactions जैसे कि oxidation, reduction reactions, hydrolysis वगैरह, जो कि degradation के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसको भी हम देखेंगे. ठीक है, right now I'm going to start. I'll be slow in first. मैं अभी आपको slowly and gradually लेके चलूंगी, but I hope कि आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ get along करेंगे. और आपको मैं ये थोड़ा सा जो हमारा सब्जेक्ट है ये देखने में इजी तो जरूर है, बट इट्स क्वाइट लेंथी, तो यू शुड गियर अप एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई से, और उसको आप अपने पास लिखिए जरूर जो मैं आपसे कह रही हूँ. नॉट नेसेसरीली कि यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन स्लाइड्स. आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू स्लाइड्स. you have to make your own notes, और जो मैं ड्यूरिंग लेक्चर आपको जो भी चीजें पॉइंट आउट करूंगी आप उसको जो है वो लिखते जाइए. दैट विल बी कमिंग इन योर एग्जाम्स एज वेल. So first we are going to do the physicochemical processes. I'm not starting with rheology because I think rheology is a little complex subject. So I'm starting with something which is, which you already know and which is understandable. And because I know this medium is quite difficult to understand, I mean the online system. So I'm hoping that we'll do rheology when we'll start teaching face to face. So हम ये processes start करते हैं, और इसके अलावा I'll be making a group in
Google Classroom, in which I'll give you different assignments, and I'll be also having your, I'll take your feedbacks on my lectures as well. ठीक है, सबसे पहला है फिजिको केमिकल प्रोसेसेस। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो जो है वो है प्रेसिपिटेशन का। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि precipitation or crystallization, they are similar concepts which are used, you can say they are actually separation techniques in पहले जब हमने केमिस्ट्री में किया तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन हम यूज करते थे टू आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ देयर इज अनदर कंपाउंड व्हिच इज प्रेजेंट एंड व्हिच इज नाउ which is present or which is formed, which is now you can see it visibly, ठीक है ना। precipitation सेम है, बट अगर आप अब मोर इन डेप्थ जाएंगे तो क्या चीज है। precipitation is a unit process in which a settlable or filterable solid is formed by the chemical joining of two or more inorganic dissolved chemical species, the objective of which is to remove one of the chemical species. Basically, why precipitation is done? To get a substance which is settleable या settle हो जाता है and which is a filterable solid. इससे क्या होता है, आपको प्योर मटेरियल या प्योर सॉलिड जो है वो आपको एक्वायर होता है, जो कि यू कैन नाउ सेटल अप करके आप इसे सेंट्रीफ्यूज करके भी अलग कर सकते हैं, आप उसको फिल्टर करके भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन का मेथड है और जो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है ये तकरीबन कमोबेश सेम ही होते हैं, क्योंकि इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सिमिलर होता है। दैट इज उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉलिड है, लेकिन जो नेचर है ना वो डिफरेंट होती है बोथ ऑफ द सॉलिड्स की। यानी कि प्रेसिपिटेशन में जो आपको सॉलिड मिलता है दे आर मोस्टली अमॉर्फस इन नेचर, व्हाइल क्रिस्टलाइजेशन में आपको जो मिलता है वो होता है क्रिस्टल इन नेचर। दैट मीन्स क्रिस्टल कौन से होते हैं, जो कि एक खास जिनकी क्रिस्टल लैटिक्स होते हैं, यानी खास उसका शेप और साइज, मतलब एक होता है उसका यूनिट जो होता है उसका बड़ी स्पेसिफिक और हार्ड शेप का होता है, ठीक है। Precipitation occurs when solution of materials which react chemically are mixed to form a product which is sparingly soluble in the liquid and therefore deposits out. Basically क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन तब होती है जबकि केमिकल रिएक्शंस कोई अमल में आए और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो विच इज नॉट स्पेरिंगली, सॉरी इसमें जो है नॉट है कि नॉट स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है लिक्विड में, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है। When the reaction occurs in a liquid, the solid form is called the precipitate, but when subjected by a centrifuge, it is called a pellet. क्योंकि जब आप उसको precipitates को जब आप centrifuge करते हैं, they all settle down and they form a pellet. The liquid remaining above the solid is in either case is called a supernatant. उसको supernatant ही कहा जाता है, चाहे वो precipitates के साथ हो या वो प्रेसिपिटेट के साथ नहीं, पैलेट के साथ हो, तब भी उसको आप सुपरनेटेंट ही कहेंगे। Precipitation is a process that causes dissolved substances to separate from a solution or a solid. Basically क्या है कि वो सारे, अब आप जैसे आप समझिए कि A प्लस AB और प्लस CD, आप कोई दो कंपाउंड्स आप जो है रिएक्ट करवा रहे हैं, means A, B, C and D, जो चारों कंपाउंड्स हैं they are present in there, ठीक है। लेकिन जब आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो कोई एक जो है इसमें से आप पूज आउट करवा रहे हैं या अलग करवा रहे हैं, सही है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे AD एंड CD। अब अगर A प्लस AB और CD में आप रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रॉब्ली AD एंड CB, तो एक वही है कि बनेगा AD और CB। तो उनमें से कोई एक जो है वो insoluble भी हो सकता है in the liquid which you are using, and that substance is oozing out, you're coming out of the solution. That is basically happens when precipitation occurs.
जैसे कि इसमें लिखा है कि in general precipitation happens when one phase is ejected from another phase, that is a solid is ejecting from a liquid. ठीक है, a liquid ejects a solid, या solid is ejecting from a liquid, or a gas ejects a liquid or solid. When the reaction occurs in a liquid solution, the solid formed is called the precipitates. Precipitation may occur if the concentration of a compound exceeds its solubility, such as when mixing solvents or changing their temperature. Basically, precipitation may occur if the concentration of a compound exceeds its solubility. तब भी एक तो ये हो गया कि आपने रिएक्शन कर दिया और उसके बाद आपको जो है वो प्रेसिपिटेशन मिल गया। सर्टन टाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रेसिपिटेशन तब भी होती है जब आप कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादा जो कि सॉल्युबलाइज्ड होता है, सॉल्युबल ना रहे, मतलब आप उसकी आप जब मिक्स कर रहे हो सॉल्वेंट उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाए, तब भी जो है वो प्रेसिपिटेशन हो जाती है। और सर्टन टाइम्स टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी को भी टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। तो सर्टन टाइम्स टेम्परेचर चेंजिंग से भी ये प्रेसिपिटेशन अकर हो जाती है। क्योंकि क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जो है कहें कि मेरा जो कंपाउंड है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबल है, बट 30 पे तो नहीं होगा ना, 40 पे आके है, तो 30 पे यू विल गेट प्रेसिपिटेट। सो चेंजिंग द टेम्परेचर विल गिव यू precipitates. Precipitation may occur rapidly from a supersaturated solution, और जो supersaturated solution है means if अगर something 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबलाइज है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने उसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया, मतलब इट्स बहुत ही ज्यादा जो है वो आपने उसको उसमें फॉर एग्जांपल आपने सोडियम ही अगर डाल दिया है उसके अंदर पानी के अंदर और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सैचुरेशन आपकी हो जाएगी ना, जैसे आप इसमें भी करते हैं, शीरा बनाते हैं आप, उसके अंदर आप चीनी डालते जाते हैं हम ज्यादा डाल देंगे तो उसके अंदर प्रेसिपिटेशन बहुत जल्दी बन जाएगी, वो थोड़ी बहुत नहीं बनेगी बल्कि वो बहुत ज्यादा बहुत क्विकली बहुत सारी बन जाएगी। ठीक है, this diagrammatic representation is to show you कि सस्पेंशन या सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है एंड प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं। सोल्यूशन के अंदर यू कैन नॉट फाइंड टू फेजेस, कोई फेज नजर नहीं आएगा, एंड सोल्यूशन ऑल्दो अ सॉलिड पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन इट, इसमें भी सॉलिड पार्टिकल हैं जो कि डिसॉल्व हुए हुए हैं बट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई। So this is a solution. While a suspension, you can see solid particles suspended in a solution. Okay, sometimes they are also, you know, they are gathered in the bottom, but जो agitation है उससे वापस you can see those small particles. That is suspension. While जो precipitates हैं, you can, you know, easily point out that these are precipitates. These are the solid particles which are gathered at one place, while the other, the remaining portion is a supernated portion. Chemical precipitation, formation of a separable solid substances from a solution, either by converting the substance into an insoluble form or by changing the composition of the solvent to diminish the solubility of the substance in it. Chemical precipitation क्या होती है कि formation of a separable solid substance from a solution, कोई कि आप प्रेसिपिटेशन को किया भी इसीलिए जाता है ताकि वो जो कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए एंड देन यू कैन separate that solid compound. Okay, either by converting the substance into an insoluble form or by changing the composition of the solvent to diminish the solubility of the substance in it. The distinction between precipitation and crystallization lies largely in whether emphasis is placed on the process by which the solubility is reduced or on that by which the structure of the solid substance become organized. जो आप प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन में फर्क किस तरह से मालूम करेंगे कि ये आइदर क्रिस्टलाइजेशन हुई है कि प्रेसिपिटेशन हुई है, वो आप बेसिकली कि किस आपका किस प्रोसेस के तहत आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई है या हुई है, रिड्यूस हुई है,
और दूसरा क्या बात है कि जो आपका सॉलिड सब्सटेंस जो बना रहा है वो किस टाइप से ऑर्गेनाइज्ड होके वो बनाता है, आइदर इट इज अमॉर्फस और इट हैज अ सर्टेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक द क्रिस्टल्स हैव। ठीक है, तो इफ यू फाउंड के मुझे जो डिस्टिंक्ट जो भी मुझे कंपाउंड मिला है उसकी मुझे एक खास जो है वो शेप नजर आ रही है, तो वो आप कहेंगे दैट इज crystalline powder, otherwise it's a precipitate and will be an amorphous powder. So I have different numerous examples which I will share you on classroom. जो different examples हैं इसकी, while you're going you will go through my lecture again, please go and see those examples. I'll share it on classroom. तो आप जब दोबारा ये लेक्चर सुनेंगे तो आप जो इसकी एग्जांपल्स मैं उसमें अपलोड करूंगी उसके अंदर आप ये एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसमें वो मैं आपको जब उसमें दूंगी, बिकॉज इसमें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है इसको। लेकिन अगर आप सिंपल एक जहन में रखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट को आप जो है पोटेशियम क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्ट कराएं तो एक सॉल्ट बनता है और एक जो है फॉर्मेशन होती है किसकी, KNO3 और AgCl सिल्वर क्लोराइड की सॉलिड फॉर्मेशन होती है, जबकि KNO3 भी साथ में बनता है। ठीक है, तो जो सिल्वर नाइट्रेट है ये इनसॉल्युबल होता है एंड इट्स प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक है, इसी तरह अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा और अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा। तो आप ये देखोगे सोडियम क्लोराइड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बिकॉज यू नो कि सोडियम क्लोराइड किस तरह का होता है, तो आपको वो जो है एक आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट मिल जाता है। Precipitate formation is useful in the detection of the type of cations in a salt. To this, an alkali first reacts with an unknown salt to produce a precipitate that is the hydroxide of the unknown salt. ये reaction आप मैं इसकी भी example आपको जो है वो theory में आपको मैं provide करूँगी। To do this, an alkali first reacts with the unknown salt. ये आपको पता है, ये आप chemistry में भी कर चुके हैं कि alkali जो है वो hydroxide के साथ करेगा, produce unknown salt के साथ to produce a precipitate that is the hydroxide of the unknown salt. To identify the cation, the color of the precipitates and its solubility in excess are noted. Similar processes are often used in sequence. For example, a barium nitrate solution will react with sulfate ion to form a solid barium sulfate precipitate, indicating that it is likely that sulfate ions are present. So it is also used for the detection of the type of cations which are present in a salt. These are the visual representation of the different types of precipitates. Okay, there are different methods of precipitations. Different methods से precipitation जो है वो की बनाई जाती है या तरीक़ाकार है, उसमें है number 1 organic solvent method, number 2 is the pH change method and number 3 is the double decomposition method. जो organic solvent method है इसमें बेसिकली क्या है कि आप उसमें वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है बेसिकली फॉर्म होते हैं कि आप डिसॉल्व करें कंपाउंड इन अ वाटर मिसेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वी ऐड वाटर, जो आपका कंपाउंड है दैट इज डिसॉल्व इन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आपका डिसॉल्व है। व्हेन यू ऐड मोर वाटर, तो वाटर के अंदर चूंकि वो इनसॉल्युबल है तो वो उसके साथ जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आप और वाटर डालते हैं। ठीक है, तो दैट इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेथड। व्हाइल जो जनरली जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज होते हैं ना इसमें मेथड में वो दे आर इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्लाइकॉल, प्रोपेलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथीलीन ग्लाइकॉल, ये जो जनरल जो टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये इस टाइप के प्रेसिपिटेशन मेथड के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी है। इफ वी कंसिडर द ड्रग, तो एक
एग्जाम्पल है दैट इज द प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन सस्पेंशन जो है वो डिसॉल्व होता है मिथेनॉल के अंदर। इट इज वेरी इजीली प्रेसिपिटेट आउट बाय एडिंग वाटर। अगर आप उसको मिथेनॉल के अंदर सस्पेंशन को बना रहे हैं तो अगर आप उसके अंदर वाटर डालेंगे तो वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट होगा एंड देन यू कैन प्रेडनिसोलोन को आप जो है फिल्टर आउट कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं पैलेट फॉर्म। इसमें ओनली फिजिकल चेंज अगर होता है इस प्रोसेस में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का जो बॉटम लाइन है ये क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज अगर होता है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएच चेंज मेथड। इसमें नाम से ही जाहिर है कि क्या होता होगा कि पीएच चेंज करने से आपकी प्रेसिपिटेशन होती होगी, ठीक है। केमिकल चेंज भी आ रहे हैं, ठीक है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली टू द सब्सटेंस इन विच solubility depends ऑन पीएच, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पीएच डिपेंडेंट होती है, इस मेथड के अंदर आपको वो जो है इस मेथड उस मेथड से प्रेसिपिटेट्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी है एस्टरडायोल सस्पेंशन। अच्छा, ये मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी उसके अंदर लिटरेचर के अंदर या थ्योरी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी पेपर्स, उसके अंदर मैं इसकी एग्जांपल आपको इन राइटिंग में बता दूंगी, ठीक है। The estradiol suspension is prepared by changing the pH of the aqueous solution. Estradiol कौन सी ड्रग है ये तो आपको पता ही होगा। It is used in sex hormones या menopause जो हो जाता है या delay of puberty के लिए यूज होता है, ठीक है। इंसुलिन भी जो है वो इसके तरीके से बनाई जाती है, प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है, prepared by the pH change method, ठीक है। These three examples are there for the pH change method. While the double decomposition method, the type of reaction in which positive and negative ion exchange to form a salt. This is basically the combination of a positive and negative ion which are exchanged together and they form a salt. अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल पहले भी दी थी, लेकिन एक और एग्जांपल इसकी, आप अगर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को अगर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो आप इसकी और एग्जांपल भी हैं, वो भी आपको जो है वो उसी में मिल जाएंगी। High concentration produces coarse PPT while which can remove by washing. जब बहुत सारे PPTs बन जाते हैं, जब हाई कंसंट्रेशन में आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दो जो है आप कंपाउंड्स ले रहे होते हैं, देन PPTs आर फॉर्म, तो आप उसमें जाहिर सी बात है जब ये एकदम से कोई चीज जैसे प्रेसिपिटेट्स भी बने या क्रिस्टल्स भी बने ना, अगर बहुत तेजी से कोई चीज बनती है ना तो वो अपने अंदर इम्प्योरिटी भी ट्रैप कर लेती है। बट जो प्रेसिपिटेट्स हैं इनकी खासियत ये होती है कि अगर वो बनते हैं तो देन यू कैन इसको प्योर करने के लिए, इसकी इम्प्योरिटी निकालने के लिए यू कैन सिंपल वॉश देम आउट। एक और बात जो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है वो ये कि प्रेसिपिटेशन जो कि फॉर्म होते हैं बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन आर मच फाइनर एंड इट्स मच डिफिकल्ट टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम देम। जो भी प्रेसिपिटेट जब आप फॉर्म करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो बहुत फाइन होते हैं और उसी की वजह से उसके अंदर इम्प्योरिटीज को अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब इसमें जो है बेसिकली इसको अभी मुझे इम्प्योरिटी की बात कर रही हूँ मैं आपसे, तो इम्प्योरिटी को आप कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग होता है ना उसको आप अंडर कंसिडरेशन लेके आते हैं कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग आपका क्या है। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग से आप अपनी इम्प्योरिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है प्रेसिपिटेशन की ये है कि जब आपको 0 से 1 माइक्रोमीटर के आपको जो है पार्टिकल्स चाहिए होते हैं तो आप प्रिफर करते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड को। Okay, there are some properties of precipitation. Some of the properties of precipitates and the reactions are
given below. These are the precipitation reaction undergoes an aqueous solution or medium in an ionic state. The reaction takes place between ions present in the aqueous solution, forming the product. The product formed at the end of the precipitation reaction are the precipitates, which are insoluble in aqueous solution. Precipitation reactions are known as ionic reactions since the ions actively take part in the reaction and form the product. These reactions depend on the temperature, concentration of the solution, buffer solution, and etc. This is also the two compounds are mixed together to form precipitates. Application of precipitation. What are the different applications? Precipitation often is used to remove metal ions from aqueous solution. Like I've told you, silver ions present in a solution of a soluble salt such as silver nitrate are precipitated by adding of chloride ions, provided, for example, by a solution of sodium chloride. The chloride ions and the silver ions combine to form silver chloride, a compound that is not soluble in water. Similarly, barium ions are precipitated by sulfate ions and calcium by oxalates. Schemes that have been developed for analysis of mixtures of metal ions by successive application of reagents that precipitates specific ions or groups of related ions. These schemes, there are specific schemes, and I'll look कि अगर ये जरूरी हुआ तो मैं आपको ये schemes भी provide करूँगी. Precipitation reaction helps in determining a particular element present in given solution. These reactions also monitor the formation of precipitates when some chemical is added to the solution. These are used for extraction of magnesium from the seawater. The human body also encounters these reactions existing between antigens and antibodies. Okay, this is all for precipitation. मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन और रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे. आई होप आपको ये मेरा स्टाइल समझ में आया होगा, बट स्टिल आई विल बी लुकिंग फॉर योर फीडबैक्स in the Google Classroom. Okay, thank you so much.